چلیے نیکسٹ آصف بھائی, آصف علی. جی ہاں, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت دن سے انتظار کر رہا تھا, میں آپ کا بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, اور کچھ خاص پوائنٹ بھی ہے میرے پاس بات کے لیے. جی جی, جی ٹاپک سے میں ریلیٹڈ سوال پوچھیں آج. ہاں جی انشاءاللہ, چلیے جی بتائیے. جی جی ٹاپک جہاد پر ہے نا. جی, جی جہاد کے تعلق سے آتنکواد کے جہاد بارے پہ نہیں ہے, جہاد پہ نہیں ہے, میں, آتنکواد کا خاتمہ. جی آتنکواد پہ بھائی, آتنکواد پہ, آتنکواد جی پہ, جہاد ٹاپک نہیں ہے. جی جی تو جیسے کہ آپ ابھی میں ٹاپک اسکرین پہ لے آیا ہوں. جی کفایت بولیے. اللہ صاحب بتا رہے تھے جہاد کا, جہاد کے تعلق سے ہی بات کر رہے تھے, اور زاہد پٹیل صاحب کو بھی میں بہت پسند کرتا ہوں اور اچھا کام کر رہے ہو. یہ اپنے یہاں پر جو وسیم رضوی ہے, ہندوستان میں جی آپ وسیم سوال رضوی, بولیے. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بتائیے, جی جی بتائیے, بولیے آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. وسیم رضوی کا ایک اعتراض تھا جس پر میں چاہ رہا تھا کہ کوئی معتبر علماء, کوئی اسلامک اسکالر جو ہے اس بات کا جواب مجھ کو بھی دے دے. میرے دل میں بھی وسوسہ تھا اس بات کا جی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس, وسیم رضوی کا کہنا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگوں کی کمی تھی, ٹیم کی اور فوج کی کمی تھی, تو انہوں نے جب تک جنگ نہیں کی اور کوئی طاقت نہیں تھی تو انہوں نے مطلب یہ نہیں کیا, اور جب ان کے پاس لوگوں کی ٹیم بڑھ گئی تو پھر انہوں نے پھر کھل کے مطلب جنگ کیا اور لوگوں کو پریشان کیا. وسیم یہی ہے. رضوی کا ایسا, ٹھیک ہے, تو مطلب دیکھیے زید بھائی ابھی آپ لوگ دیجئے گا جب تک میں ایک بات جی کہہ دیتا ہوں. جی بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں جب تک طاقت میں نہیں تھے تب تک نہیں کچھ کہا, جب طاقت میں آ گئے تو کہا. ایک میں نہیں کہہ نارمل رہا سا ہوں, مجھے پوچھتا ہے, میں آپ وسیم رضوی نے کہا, میں کہتا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اسی نے کہا. لیکن یہ بات ہے میں آپ سے مخاطب ہوں تو کبھی کبھی آپ نکل جائے گا زبان سے. تو مسلمان نہیں, مسلمان مجھ کو پکڑیں گے کہ آپ نے ایسا اعتراض کر دیا, ایسا ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں, کچھ بات نہیں صحیح ہے. ہے آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کہتا سوال ہوں پوچھ رہے ہو. کوئی اور, جی انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا کہ کوئی مجھے مار رہا, کوئی مجھ کو مار رہا, میں اکیلا ہوں, چاروں طرف سے لوگ مجھے گھیرے ہوئے ہیں, مار رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ مجھے ابھی اپنے آپ کو بچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچنے کی کوشش کروں گا. اب اگر میں بچ گیا, دو چار لوگ میری مدد کو آگے, میں مظلوم ہی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طاقت ہوئی تب کیا, کمزور تھے تو کیا نہیں کیا. اصل مسئلہ ہے ظالم تھے کہ مظلوم تھے. پہلے اس کو طے کرنا ضروری ہے. پوزیشن رسول کی کیا تھی, رسول کی پوزیشن کیا تھی, رسول کے ساتھیوں کی پوزیشن کیا تھی. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں. پہلے پوزیشن طے کر لیتے ہیں ہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور رسول کے ساتھیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ مظلوم لوگ تھے, ان کو مارا جا رہا تھا, ان کو جو ہے ستایا جا رہا تھا, ان کو گالی دی جا رہی تھی. تعداد میں واقعی چھوڑے تھے, تیش میں آتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا ہم کو اس نے کہا, اس کا جواب دے دوں کیا, اس نے ایسا مارا, اس کو میں بھی ماروں گا. اللہ کے رسول سمجھاتے تھے نہیں, ایسا مت کرو. بالکل صحیح بات ہے, کچھ بھی غلط نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, مدینہ میں دوسرے صحابہ بھی مل گئے, وہاں اسلام تھوڑا اور پھیلا بھی, اور بھی ہو گئے. تو کیا حالانکہ ابھی مظلوم ہے, رسول اللہ ابھی مظلوم ہے. یعنی یہاں سے جب مدینہ چلے گئے تو مکے سے ٹارچر ہو رہا ہے. ٹارچر کی بہت ساری شکلیں, میرا شروع کا کمنٹ دیکھیں گے بدر کیوں ہوئی, تو میں نے جلدی 5-6 پوائنٹ گنائے ہیں. ٹارچر ہو رہا تھا مکے سے مدینہ والوں پر. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد, طاقت آنے کے بعد مکے والوں سے لڑائی چھیڑ دی تھی؟ یہ بالکل رانگ ہے, غلط ہے. کہ کمزور تھے تو صبر کیا اور طاقت میں آ گئے تو لڑائی چھیڑ دی, بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہوا. جب اللہ کے رسول طاقت میں آنے لگے تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا. بھئی جو ظالم ہوتا ہے نا, وہ ڈرتا ہے کہ میں نے ستایا ہے, میں نے مارا ہے, سینے پہ پتھر رکھا ہے, پیٹ کے نیچے کوئلہ جلایا. یہ کیوں نہیں وسیم رضوی یا کوئی بھی بیان کرتا بھئی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کوئلہ تہکا کر کے اس کے اوپر ایک مسلمان کو لٹا دیا جا رہا ہے, چٹائی میں لپیٹ کر کے اور دھواں لگا دیا جا رہا ہے. ہاں, ایک عورت کو باندھ کر کے اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ میں, ایک ٹانگ ایک اونٹ میں پرچھی مار دی جاتی ہے اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بدن پھٹ جائے. یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا مکے میں, یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟
फिर रसूलुल्लाह जब मदीने में गए, ताकत में आए, तब भी यही लोग जुल्म कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि देखो अगर तुम समझते हो कि हम बच गए हैं तो हम यहाँ मदीने में आके चढ़ के तुमको मारेंगे। और मदीने में जो प्रोटेक्ट कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको धमकी भरे खत भेजे जा रहे थे कि तुम लोगों ने अगर इन लोगों को नहीं निकाला तो हम लोग मदीने में आकर के एक एक बोटी तुम्हारी नोच लेंगे। ये हो रहा था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक जंग हो गई बदर की। फिर ऐसे ही सारी जंगें होती रहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी जंग हुई मदीना जाने के बाद प्रोटेक्शन की जंग थी। एक बता देना कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया था कि निकल करके मक्का चले गए थे मारने के लिए, क्या कोई साबित कर सकता है? बदर में क्या रसूल मक्का गए थे? उहुद में क्या रसूल मक्का गए थे? और जंगे खंदक और अहज़ाब हुई, क्या रसूल मक्का गए थे? जंगे हुनैन हुई, क्या रसूल मक्का गए थे? और जब गए ना, जब गए, अभी तक तो गए नहीं, लोग आते थे, लेकिन जब गए तो रहमत का झंडा लेके गए। एक आदमी कह रहा, अरे मुझको मारा था ना लिटा लिटा के हमारे साथियों को, हमारे घर वालों को, आज इनको सबक सिखाएंगे। अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन जंग का दिन है। तो जब फुल पावर में आए, फुल पावर में, और जब आप खुद जा रहे हैं मक्का, वो लोग चढ़ के इधर आ रहे थे, जब आप खुद चढ़ के जा रहे हैं मक्का, जब आप पावर में आए, जब चढ़ के मक्के में गए तो क्या कहा? अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम फअंतुम तुलका, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, तुम आजाद हो। तो ये पावर में आने के बाद तो आपने ये किया, पावर में आने के बाद तो आपने ये किया। बीच का जो मतलब टाइम है, बीच का जो टाइम है, कमजोरी और पावर के बीच का जो टाइम है, उसमें आपने अपना और अपने साथियों का प्रोटेक्शन किया है। बस मुख्तसर में अब आप लोग बोल सकते हैं। बहुत बेहतरीन शेख, बहुत बेहतरीन। सही साहब, मैं बातें बताता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ। अच्छा बताइए। देखो भाई, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको पावर पॉइंट थोड़ा शेयर कर दूं। जो शेख ने बात कही ओरली, मैं उसकी प्रूफ आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, ताकि इसके बारे में किसी के माइंड में डाउट नहीं रहे कि ये है या नहीं है। जी बेस्ट वॉइस जी। तो देख रहे हैं, ये कुरान की आयत है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 61। सूरह अनफाल में जंग का डिस्क्रिप्शन है। मक्का में नहीं नाजिल हुई थी, मदीना में नाजिल हुई थी। और क्या आ रहा है इसमें? वइन जनहु लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह, कि अगर वो लोग सुलह की तरफ माइल हो तो आप भी सुलह की तरफ झुकें और अल्लाह पर भरोसा करें। मतलब अल्लाह पे भरोसा करें। सुलह करने में क्या होता है ना, डर होता है कि मैं तो सुलह कर रहा हूं, सामने वाला कुछ और करके कुछ और जंग पीठ में छुरी मारेगा। तो अल्लाह ताला फरमाया, अगर सामने वाले सुलह की तरफ झुके हुए हैं तो आप भी सुलह की तरफ झुकें और अल्लाह पर भरोसा करो। ये क्या है? सुलह की बात हो रही है। हाँ, कहां पे बात हो रही है? मदीना में बात हो रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 256, सूरह बकरा कहां नाजिल हुई? मदीना में नाजिल हुई। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, सही और गलत वाज़े है। तो यहाँ क्या है? दीन के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं है, ये सिखाया गया है। कहां पे? मदीना में। और ये आयत जब नाजिल हुई, इसका अगर आप तफसीर इब्न कसीर में इसका अगर बैकग्राउंड पढ़े तो मदीना के अंदर जो अंसार रहते थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो लोग अपने बाज बच्चों को उन्होंने दिया था यहूदियों के पास, उनकी परवरिश के लिए, उनके साथ खिदमत के लिए, उनके साथ मिलके रहने के लिए। और वो जो उनके बच्चे थे यहूदी बन गए थे। अब जब माँ बाप हो गए थे मुस्लिम, तो वो लोग चाहते थे कि क्या हम अपने बच्चों पे फोर्स करके उनको इस्लाम में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, क्योंकि हिदायत अलग हो चुकी है गुमराही से। हिदायत और गुमराही वाज़ेह है, क्लियर है। कहां नाजिल हो रही है? मक्का में नहीं, मदीना में नाजिल हो रही है कि कोई जोर जबरदस्ती तुम दीन के मामले में मत करना। तो जो ये लोग कहने का एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं ना, कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग चाहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल किया सुलह का। आप देखेंगे मदीना के यहूदियों के साथ सुलह की, यहूदियों ने पीठ में छुरी मारे, यहूदियों ने अब धोखाधड़ी की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुलह की थी। मक्का के मुश्रिकों के साथ सुलह की, सुलह हुदैबिया की मिसाल है हमारे पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुलह के अंदर पहल की और आगे बढ़े। तो हम ये देखते हैं मिसालें हैं। और जो शेख शाबान ने जो मिसाल बताई कि खुद मदीना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे 13 साल की जुल्म के बाद, वहां पे मक्का के अंदर 13 साल तक जो सारी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद जब मदीना पहुंच गए थे, तो मदीना में भी वो लोगों ने छोड़ा नहीं। आप हदीस देख सकते हो, सुनन अबू दाऊद की हदीस, सही सनद की हदीस है, और ये हदीस सही बुखारी की देख सकते हो। तो पहली हदीस जो देख रहे हैं कि इसके अंदर आया कि मक्का के मुश्रिकों ने अल्टीमेटम दिया था मदीना के लीडर्स को, कि कहा कि तुमने हमारे साथी को प्रोटेक्शन दिया है और हम कसम खाते हैं अल्लाह की
क्योंकि वो भी अल्लाह को मानते थे लेकिन शिर्क भी करते थे, 360 बुत भी थे, कि हम कि तुम या तो उनके साथ लड़ो या तो उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर करो, नहीं तो हम पूरी ताकत के साथ आएंगे और तुम्हारे सारे मर्दों का कत्ल कर देंगे, तुम्हारी औरतों को लेकर जाएंगे। किसको ये अल्टीमेटम दिया था? मदीना के अंसार को अल्टीमेटम दिया था कि तुम लोग खुद लड़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, लड़ करके उनको बाहर करो, नहीं तो हम आके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। देखो दलील के साथ आपके सामने है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3004 है। सही बुखारी की हदीस है कि साद बिन मुआज जो मदीना के अंसार के लीडर्स में से लीडर थे, जब वो उम्रा करने गए थे तो अबू जहल जो मक्का के लीडर्स में से था, उसने क्लियर उसके अंदर वार्निंग दिया था कि तुम यहाँ पे आए हो मक्का में और तुमने हमारे यहाँ के एक शख्स को हिफाजत दी हुई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह की कसम अगर तुम यहाँ पर इसके अबू सफवान के साथ नहीं होते तो मैं तुम्हें वापस जाने नहीं देता था, और कहा कि अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन ये दे रहा था धमकियां? वहां से मक्का से बैठकर वो लोग धमकियां दे रहे थे। और कुरान की आयत है जिसमें जंग की इजाजत दी गई, उस आयत में क्या दिया गया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जो लोगों के साथ क़िताल किया गया, जंग की गई, उनके साथ खिलाफ लड़ा गया, उन्हें इजाजत दी गई है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, उन्हें इजाजत दी गई लड़ने की। यानी ये इस तरह से आयत नाजिल हुई। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को, आपके लिए क्लियर हुई होगी बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो एतराज आता है कि जब दीन मुकम्मल हो गया हजरत, जब मेजोरिटी हो गई इस्लाम की, तो जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, अल्लाह और रसूल को नहीं मानते, उन लोगों को मदीना या मक्का से घर छोड़ के भगा दिया, उनको बीवी बच्चों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, छीन लिया गया। क्या ये बात भी सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर मुस्लिमों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और उनको जो है भगा दिया गया वहां से कि आप ईमान नहीं लाए तो आप निकल जाओ यहाँ से। ऐसा सच है? बिल्कुल गलत बात। देखिए, ये भी देखने की पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जिसने हमसे जंग किया है, जिसने हम पर जुल्म किया है, पहले इंसाफ पे जाए। देखिए, हम लोग हक को, इंसाफ को और अखलाक को मिला देते हैं। दो चीजें, एक है हक और इंसाफ और एक है उससे ऊपर अखलाक, एक है उससे ऊपर बहुत ज्यादा नरमी कर देना। तो जिसने हमसे जंग किया है, जिसने हमको मारा है, जिसने हमको इतने साल तक बिल्कुल तंग करके रखा है कि हम रह ना पाए, सुकून से रह ना पाए, पहला सवाल मेरा यह है कि जब वो हमारे अंडर में आए तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी से भी पूछता हूं, कोई भी आदमी हो, अगर किसी ने मेरे बाप को दिया है, ये पहले समझने की बात है, किसी ने मेरे बाप को मार दिया है, मेरे भाई को मार दिया है, मुझ पे जुल्म किया है, मेरे खानदान पे जुल्म किया है, अगर वो मेरे इख्तियार में आए तो मुझे यह हक बनता है कि मैं उससे अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला लूं। नंबर 1। इसकी रोशनी में जो लोग वहां थे, मक्के के अंदर जो मुशरिकीन थे, जो अल्लाह के रसूल से जंग कर रहे थे, मुसलसल परेशान कर रहे थे, इसकी रोशनी में अगर उनके साथ ऐसा ही सलूक हो रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि तुमको मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम ये एरिया छोड़ के चले जाओ, तो ये भी एक एहसान है। तुम्हारी जान बख्शी की जा रही है, हमारे पावर में आ चुके हो, हमको परेशान किए थे, जंग किए थे, लेकिन हम तुमको ये इतनी आजादी देते हैं कि ये एरिया छोड़ के चले जाओ, तो ये एहसान है। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का सब उन लोगों ने हड़पा था भाई, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों के बागात, मुसलमानों की तिजारत, मुसलमानों को लेके जाने क्या दिया था इन लोगों ने? ये लोग क्यों नहीं बयान करते? मुसलमानों के फल से लदे हुए बागात मुसलमान छोड़ के मदीना चले गए, मुसलमानों की भरी पूरी तिजारत छोड़ के मदीना चले गए, मुसलमान अपनी कमाई का कुछ पैसा लेके जा रहा है तो कहा ये पैसा भी तुमको रख के जाना होगा क्योंकि तुमने यहां कमाया था। बाज लोगों के तो कपड़े उतरवा लिए गए भाई, घर पे कब्जा कर लिया गया। ये सब कुछ मुसलमानों के साथ हुआ। अगर मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ तो इसके मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूं, अगर मुसलमान इसके बदले में उनसे घर छीन ले तो क्या गलत है? इतने दिन तक तो उनका घर छीने रहे, लेकिन ये प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है कि उनकी जमीन ले ली गई, उनका माल ले लिया गया, ये प्रूफ नहीं है। हाँ, इतनी बात का मामला जरूर हुआ कि भाई यहाँ पर जो एक खास एरिया है, खास जोन है, ये तौहीद की जगह है, तौहीद का अड्डा है, यहाँ तौहीद की बात होगी, इस जोन में वो लोग रहेंगे जो इसको मानते हैं।
भाई उस जोन में क्यों तुम रहोगे जब तुम मुशरिक हो, तुम्हें काबा से, तुम्हें तौहीद से, तुम्हें रिसालत से दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं? रसूल रहेंगे, रसूल से दिलचस्पी, ईमान रखने वाले, तौहीद से दिलचस्पी रखने वाले, तौहीद पे ईमान रखने वाले। तो जाहिर सी बात है तुम इस जोन के लायक नहीं, तुम दूसरे जोन में रहो। ये इसमें एक नॉर्मल सी बात है। तो इतनी बातें मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कही हैं। अभी जैद भाई आपको इसका मुस्तकिल जवाब देंगे। इसका हुक्म देता है कि अगर जो इस्लाम को नहीं माने उसको जो है, सुनो मैं पहले आपको इसका बुनियादी जवाब बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि एक जगह है, एक जगह, ये मक्का की जो जगह, अगर आप देखोगे छोटी सी एरिया होगी, और ये वो जगह है जहां पे लोग दूर दूर से उम्रा करने आएंगे, हज करने आएंगे। और इसके अंदर क्या है मामला कि जो बिलीफ होता है, जो अकीदा है, बिलीफ है, यहां से लोग सीख के जाएंगे। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे मना किया गया, ये फतेह के एतबार से नहीं मना किया गया कि फतह किया है हमने, क्योंकि अगर फतेह की बात होती तो इतनी सारी जगहों पे मुसलमानों ने फतेह की। अगर आप देखोगे खुद सहाबा के जमाने में, आप देखोगे उमर रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में, जो आगे हम देखते हैं कि कहां कहां तक पहुंचे थे। आज भी आपको चर्चेज मिलेंगे मिस्र के, मेरे पास फोटोज हैं यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ, मिस्र में, सीरिया में, हाँ, और लेबनान में, जो पुराने जमाने के बने हुए आज तक पड़े हुए। तो हम देखते हैं कि ऐसा अगर मामला होता तो सब जगह से निकालते थे ना, जहां मुसलमान जाते हैं वहां पे दूसरों को निकाल देते, दूसरे मजहब वालों को। क्या ऐसा होता? तो सब जगह होता था, ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ एक जगह के लिए, मक्का के लिए क्यों खास? क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जहां से दुनिया भर से लोग आते हैं। और आप अगर स्क्वायर फीट एरिया देखेंगे, जो हरम की एरिया, जहां बाहर बोर्ड लगा होता है आज भी कि नॉन मुस्लिम्स यहाँ एंटर ना करें, तो वो एरिया एक थोड़ी सी एरिया है। पूरी दुनिया का रुए जमीन पे देखोगे एक छोटी सी जगह है। और वो जगह के अंदर, जैसे आप देखो कि मिसाल के तौर पर हम लोग इंडियन सिटीजन है, लेकिन हम लोग हर जगह पे, कोई कैंटोनमेंट एरिया हो, कोई मिलिट्री की एरिया है, नेवी की एरिया, हम लोग वहां नहीं जा सकते। कोई एक एरिया होती है जो रूल्स होते हैं। तो मक्का मदीना में जाने का, मक्का का जो खास तौर से ये रूल है कि वहां कोई जाना चाहता है तो वहां पे कोई जाएगा, वो जो कलिमा पड़ेगा, जो ईमान वाला है, वो वहां जाएगा। तो वहां से जो नॉन मुस्लिम्स को टाइम दिया गया, उनको टाइम दिया गया रिलोकेट करने का। ऐसा नहीं कि उनका जब्त किया गया, सब मिर्ची मसाला लगाकर वो गलत कहानी बता रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है ना, जब्त किया जाएगा, उसको उनको फेयर टाइम दिया गया कि आप इतने टाइम के अंदर आप लोग यहाँ से रिलोकेट हो जाइए, क्योंकि ये जगह खास है, मुसलमानों का ये इबादत की जगह है और ये स्पेशल जगह है। ये एक जगह के लिए ये रूल था, सब जगह के लिए मुसलमानों ने ऐसा कोई रूल नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आम मस्जिदों की बात देखेंगे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी क्रिश्चियंस आए नजरान से। कहां पे बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? मस्जिद में बात की। तो कोई आम मस्जिद के अंदर, जो हकीकत में क्या है ना, इस्लाम के अंदर रूल ये है कि मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम भी आ सकता है। इसकी कई दलीलें कुरान हदीस में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद ऐसे नॉन मुस्लिम्स आकर के मस्जिद में बैठकर बात करते थे। ऐसी कई मिसालें मौजूद है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बांधा एक गैर मुस्लिम कैदी को, तो कहाँ बांधा? मस्जिद में बंधवाया कि ताकि वो देखे मुसलमान कैसे रहते हैं, कैसे इबादत करते हैं। तो ये ऐसा मामला है कि बाकी है ना पूरी दुनिया की मस्जिदों में आप मुसलमानों से मिल सकते हो वगैरह, लेकिन एक जगह को एक्सक्लूड किया गया है, मक्का को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गालिब कमाल से कोई डिबेट पर आप लोगों में से कोई क्यों नहीं आता उसके चैनल पे? देखिए असल बात क्या है ना कि किसी का अगर सवालों का जवाब दे दिया गया है तो हम लोग उसको ज्यादा प्रमोट करना नहीं बिलीव करते हैं। तो जहां पे मैंने डिबेट किया भी है ना, तो वो ऐसे किया है कि कम से कम एक बार इनकी फेकनेस साबित हो जाए, एक बार लोग देख लें कितने फेक है ये लोग। हाँ, तो वैसा किया है, वैसे देखेंगे आगे कभी। हाँ, इंशाल्लाह। उससे क्या नुकसान हो रहा है हजरत पता है? आप लोग जो इसके डॉक्टर हो, पीएचडी है आपकी, इस्लामिक नॉलेज आपको अच्छा है, उससे क्या हो रहा है? जो दूसरे धर्म के लोग हैं, गैर धर्म के, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो 70% है लगभग दुनिया में, 70। तो वो आम बंदे भी इन लोगों के जो सवालात याद कर करके इनके अंडे, बच्चे और कीड़े मकोड़े पैदा हो जा रहे। हम जैसे आम बंदों को, जिनको नॉलेज की कमी होती है, ये बाजारों में उनके जो 10-10 साल के बच्चे इनके सवालात को याद करके, और हम जैसे लोगों को पकड़ेंगे और चलना दुश्वार कर देंगे। इस्लाम में तो ये है, कुरान में ये, आयत में है। अब हम लोगों को उसकी पूरा नॉलेज नहीं है कि आयत मनसूख है कि नासिक है, कि क्या मुतशाबे है, ये जो बता रहा है इसके हम लोग को नॉलेज नहीं है। तो इनका मुंह, इन सपोलों का मुंह वहीं पर ठेस देना चाहिए जिस स्टेज से ये लोग गंद फैला रहे हैं। और ये आप लोगों की, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी है। आप लोगों को अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है, और ये अंडे बच्चे पैदा कर देंगे ना, तो पूरी दुनिया में मुसलमानों को चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सवालात इतने पैदा हो जाएंगे कि इनके छोटे छोटे बच्चे सवाल याद कर लेंगे और हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। समझो कैसा होता है ना कि हम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत इसमें सैड तजुर्बा ये है ना कि मैंने कई वीडियोस बनाया, सवालों के जवाब दिया, वो लोग कोई जवाब दे में इंटरेस्ट नहीं है।
وہ اپنی پٹری لے کے چل رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے, کوئی اپنی ٹریک لے کے اندھ وشواس کے ساتھ چل رہا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں نا کہ لوگ جو پوچھیں گے نا سوال, تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ان کو جواب ملتا ہے. آج سب جواب اویلیبل ہے. ہم لوگوں نے الحمدللہ جو سوال اب تک کور کیے نا, سٹریمز کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تقریباً سوال الحمدللہ کور ہو گیا. ابھی بہت دنوں سے کوئی نیا سوال شاید ہی آتا ہے, ہاں بہت دنوں سے ایسا معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جواب بنا کر کے ہم لوگ اویلیبل کر رہے ہیں کہ جس کو جاننا ہے وہ جان لے جواب. جی انشاءاللہ, شکریہ. اگلی ٹائم کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا اگنور کیا جاتا ہے تو وہ خود اپنے آپ مرتی ہے. کوئی جیسے بیٹھ کر کے آپ کے پیچھے سے ہنس رہا ہے آپ کے اوپر, اب موڑ کے اس کو جتنا دیکھو گے نا وہ انکریج ہوگا. اس کو آپ اگر اگنور کر کے آگے بڑھو نا تو ایسا لگے گا کوئی پاگل آدمی ہنس رہا ہے. تو کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کو عارض عن الجاہلین جو آتا ہے نا کہ جاہلوں سے اعراض کرو, جو فولش لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگنور کرو. یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے دین کی, اس کے ذریعے وہ نیچرل موت مرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے اگر 30% ہے پوری دنیا میں تو 30% اگر اگنور کرتے ہیں, لیکن وہ جو 70% لوگ ہیں وہ اس کے انڈے بچے نارمل پبلک کو یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو فتنہ فساد پیدا کرنے والے, کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. ان کو اگنور کر کے وہ اپنی نیچرل موت مریں گے. یہ بھی ایک بات ہے, طریقہ ہے, اسٹریٹجی ہے. کیونکہ وہ لوگ ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں, ہم لوگ ان کے جواب دیتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ اگنور کر کے ہم لوگوں کے اوپر وہ چیز یوز کرتے ہیں. جی ہاں ہاں. اچھا ایک بات میں جوڑ دوں, ایک بات یہ جو شیخ صاحبان نے الحمدللہ بہت اچھا جواب دیا, زید بھائی نے بھی مکمل کر دیا. بس ایک بات رہے گی, یہ جو کہا گیا نا کہ ان کو بھگا دیا گیا, ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا, بھائی یہ غلط بات ہے. آج بھی دیکھیے کبھی کبھی حکومت کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ بنانا ہے تو وہاں کے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, آپ یہاں سے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد میں اس کی جو جگہ ہے اس کا معاوضہ دے دیتے ہیں ان کو. اب صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہاں سے ہم آپ کو نکالنے والے ہیں, ہٹانے والے ہیں. یہ حدیث نمبر 3167 3167. جی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انی اريد ان اجليكم من هذه الارض, میں تمہیں یہاں سے ہٹانے والا ہوں, یہاں سے تم کو ہٹانا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یجد منکم بماله شيئا فليبيعه, اگر تمہارا کوئی مال ہے تو اس کو بیچ ڈالو, یہاں بیچ کے یہاں سے نکل جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تمہاری پراپرٹی ہم سیز کر دیں گے, لے لیں گے, قبضہ کر لیں گے, بلکہ کہا کہ بھئی تمہارا جو مال ہے, جو گھر بار ہے, بیچ کے نکل جاؤ یہاں سے, یعنی اس کی قیمت لے لو, یعنی اس کی قیمت لے کے آپ نکل جاؤ. تو یہاں پہ کہا ہے کہ ان کا پراپرٹی قبضہ کر لیا, سیز کر لیا. ہاں اگر بھائی کوئی جو ہے آتنکی ہو اور کوئی جو ہے مارنے کاٹنے والا ہو, اس کی پراپرٹی اگر سیز بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آتنکی پکڑا جائے گا, اس کی پراپرٹی ہوگی, اس کا بینک سیز نہیں کریں گے. کوئی بدماش ہوگا, کوئی آتنکی ہوگا, پتا چلا کہ آتنکی ہے, اس کی ساری پراپرٹی آج بھی سیز کر دے, کوئی بھی حکومت اس کو سیز کر دے گی. لیکن یہ جو حدیث میں ملتا ہے, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ ان کی پراپرٹی کو, جن کو ہٹایا گیا, ٹرانسفر کیا گیا, ان کی ساری پراپرٹی کو قبضہ کر لیا گیا, بلکہ یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو بیچ دو, بیچ کے یہاں سے نکل جاؤ کہ میں تمہیں یہاں سے ہٹانے والا ہوں. تو جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک غیر مسلم کو باندھا تھا, 3 دن مطلب رکھا تھا ان کو اسلامک کلچر سکھانے اور دکھانے کے لیے, تو ان لوگوں کو بھی رہنے دیتے, مطلب نہیں ہٹاتے, کہ وہ بھی دیکھتے تو کنورٹ ہوتے اسلام میں. یہی عمل یہاں پر کیوں نہیں لیا گیا؟ اصل میں ہر جگہ کی الگ کنڈیشن ہوتی ہے, اور جیسے ہم دور سے بہت سارے معاملات نہیں سمجھ سکتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب ہم موقع پہ ہوتے ہیں تب وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے. بھی ایک مسئلے کے کئی فیصلے ہو سکتے ہیں, اب اس میں کون سا فیصلہ کب لینا ہے موقع پہ موجود شخص زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا لینا ہے. آیا یہ کہ معاوضہ دے کر کے دوسری جگہ بسانا چاہیے, آیا یہ کہ وہاں پہ رکھنا چاہیے, آیا یہ کہ اس سے بدلہ لینا چاہیے, اس پہ سزا جاری کرنی چاہیے. بھی سزا کا بھی قانون تھا, سزا بھی جاری کر سکتے تھے, بدلے میں بعض لوگوں کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا, وہ بھی کیا جا سکتا تھا, وہ بھی قانون تھا. ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے, وہ بھی قانون ہے. ان کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے, یہ بھی آپشن ہے. اب کئی آپشن ہیں, سارے آپشن ٹھیک ہیں, ان میں سے کس آپشن کو چننا ہے یہ اس وقت کام کرنے والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ معاف بھی کیا ہے. بعض لوگوں کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے, یعنی اکا دکا لوگ تھے اس وقت بھی, یعنی معاف کر اللہ کے رسول نے کر دیا, لیکن 1-2 لوگوں کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا تھا. کنڈیشن ایسی تھی, ظالم تو تھے ہی, ظالموں میں سے 99% ظالموں کو تو معاف کر دیا, لیکن 1% ظالموں میں یا اس سے کم بھی ایسے بھی لوگ تھے
जिनको अल्लाह के रसूल ने माफ नहीं किया, ऐसा है। तो अब हम ये कहें कि अरे उनको भी माफ कर देते तो क्या होता? भाई उनको भी माफ कर देने में क्या प्रॉब्लम था, क्या कंडीशन थी, उस वक्त अल्लाह के रसूल ज्यादा बेहतर समझते थे। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिला होगा। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।